हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट के दो लेक्चर में आपने पढ़ा है AC अप्लाइड टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। तो इन केस ऑफ RC सर्किट EMF lags the current by phase angle phi, and in case of RL circuit we get EMF leads the current by phase angle phi। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो देखो यहाँ कंसिडर ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, इंडक्टर of inductance L and capacitor of capacitance C is connected to the alternating source of EMF. The instantaneous EMF applied across the combination E is equal to E naught sin omega t. At any instant I be the RMS value of current flowing in a circuit. तो यहाँ देखो ER be the potential drop across the resistor, EL be the potential drop across the inductor, and EC be the potential drop across the capacitor। तो यहाँ पे लिखेंगे potential drop across the resistor I into R, potential drop across the inductor I into XL, and potential drop across the capacitor I into XC. So we know that when AC is applied to a circuit containing resistance only, both the EMF and the current are in the same phase. Next, when AC is applied to a circuit containing inductor only, EMF leads the current by phase angle pi by 2. And in case of capacitor, EMF lags the current by phase angle pi by 2. तो यहाँ देखो OA represent potential drop across the resistor, and in case of resistive circuit both the current and the EMF are in the same direction. OA represent the potential drop across the resistor. In case of inductor, EMF leads the current by phase angle pi by 2. तो OB represent the potential drop across the inductor, and in case of capacitor EMF lags the current by phase angle pi by 2. तो EC represent the potential drop across the capacitor। ठीक है, अब यहाँ देखो peak value of voltage E naught R is equal to I naught into R, peak value of voltage across the resistor, peak value of voltage across the inductor I naught into XL, and peak value of voltage across the capacitor I naught into XC। अब देखो यहाँ in case of inductive circuit XL is greater than XC, or we say that EL is greater than EC। यहाँ पे देखो EL along पॉजिटिव y एक्सिस है और EC along नेगेटिव y एक्सिस, तो यहाँ दोनों का फेज डिफरेंस कितना है 180। तो इंडक्टिव सर्किट में क्या रहेगा, EL इज ग्रेटर देन EC, तो रिजल्टेंट EMF रहेगा यहाँ पे EL माइनस EC along पॉजिटिव y डायरेक्शन। ओके, एंड द टोटल EMF अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, the total EMF applied across the combination will given by the diagonal of the parallelogram. So this OR suppose represent the total EMF applied across the combination। ठीक है, तो फिर से एक बार in case of resistive circuit both the current and the voltage are in the same phase. In case of inductor EMF leads the current by phase angle pi by 2, and in case of capacitor EMF lags the current by phase angle pi by 2। तो यहाँ पे पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर एंड पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, ये दोनों का फेज डिफरेंस कितना है 180। अब देखो यहाँ इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट XL is greater than XC, so potential drop across the inductor is greater than potential drop across the capacitor,
एंड देयरफॉर रिजल्टेंट ईएमएफ क्या रहेगा, EL माइनस EC अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन. सो टोटल ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे फ्रॉम फिगर E स्क्वायर इज इक्वल टू ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC होल स्क्वायर. EL स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल टू ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC होल स्क्वायर और टोटल ईएमएफ E इक्वल टू अंडर रूट ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC होल स्क्वायर टोटल ईएमएफ. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सपोज लेंथ ऑफ द एरो विल गिव द मैग्नीट्यूड. सो वी से दैट E नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू E नॉट R स्क्वायर प्लस E नॉट L माइनस E नॉट C स्क्वायर. ठीक है, सो E नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट इंटू R होल स्क्वायर प्लस I नॉट इंटू XL माइनस I नॉट इंटू XC होल स्क्वायर. सो E नॉट स्क्वायर, यहाँ पे I नॉट स्क्वायर कॉमन निकालिए, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज E नॉट इक्वल टू I नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. और वी से दैट I नॉट दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट इक्वल टू E नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. I नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. अब क्या करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन विद द ओमिक रेजिस्टेंस. करंट I इक्वल टू E बाय R. अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. द क्वांटिटी Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर is the combined opposition offered by resistance, inductive reactance and capacitive reactance to the flow of current. ठीक है, and this is called as impedance of series LCR circuit. तो impedance of series LCR circuit क्या है, Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, that is the combined opposition offered by resistance and reactance to the flow of alternating current. Okay. अब देखो यहाँ फ्रॉम फिगर वी से डैट इन केस ऑफ सीरीज LCR सर्किट द EMF लीड द करंट बाय फेज एंगल फाई. अब ये कब पॉसिबल है कि इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट में EL ग्रेटर देन EC है, तो रिजल्टेंट रहेगा EL माइनस EC. सो EMF जो रहेगा वो रहेगा अहेड ऑफ करंट बाय फेज एंगल फाई. ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना अब अगेन फेजर डायग्राम फिर से निकालेंगे. इन केस ऑफ रेजिस्टेंस बोथ द वोल्टेज एंड द करंट आर इन द सेम फेज. इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट EMF लीड द करंट बाय फेज एंगल फाई, एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर सर्किट EMF लैग्स द करंट बाय फेज एंगल फाई. इंडक्टिव सर्किट में EL इज ग्रेटर देन EC, तो टोटल EMF क्या रहेगा, EL माइनस EC अलॉन्ग पॉजिटिव y डायरेक्शन. और यहाँ पे टोटल EMF अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, और हियर वी से दैट EMF लीड द करंट बाय फेज एंगल फाई. अब देखो यहाँ फ्रॉम फिगर tan फाई इज इक्वल टू अपोजिट साइड EL माइनस EC, EL माइनस EC अपॉन ER. tan phi is equal to EL minus EC upon ER. So EL I into XL minus I into XC upon I into R. Current cancel I. So tan phi is equal to XL minus XC upon R. Tan phi equal to XL minus XC upon R. ठीक है,
तो फर्स्ट इसके पहले अपन ने देखा है कि इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। नेक्स्ट है tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब देखो यहाँ स्पेशल केसेस में नंबर 1, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सो यहाँ पे tan phi क्या रहेगा, पॉजिटिव, tan phi is positive and therefore we say that EMF leads the current. EMF leads the current by phase angle phi. ठीक है, ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2, if XL less than XC, that is in capacitive circuit, अगर XL ग्रेटर देन XC है तो उसको बोलेंगे इंडक्टिव सर्किट, XL लेस देन XC है देन वी कॉल इट्स कैपेसिटिव सर्किट। तो यहाँ पे tan phi रहेगा नेगेटिव, tan phi नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे देखो ER पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, EL पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड EC पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो यहाँ पे EC इज ग्रेटर देन EL हो गया, तो नेट EMF क्या रहेगा यहाँ पे, EC माइनस EL अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस। सो टोटल EMF अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देखो EMF लैग्स द करंट, EMF लैग्स द करंट बाय फेज एंगल फाई। तो इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट EMF लीड्स द करंट बाय फेज एंगल फाई, इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट EMF लैग्स द करंट बाय फेज एंगल फाई, that is EMF lags the current by phase angle, EMF lags the current by phase angle phi। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। अब नंबर 3 देखो, if XL इक्वल टू XC देन tan phi इक्वल टू क्या रहेगा, 0, tan phi 0 है, सो बोथ द EMF एंड द करंट आर along the same direction, that is EMF and current are in same phase, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 0। सो इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, in case of inductive circuit EMF leads the current by phase angle phi, in case of capacitive circuit EMF lags the current by phase angle phi, and if XL equal to XC है, both the EMF and the current are in the same phase, that is the phase difference between them is 0। okay, अब देखो यहाँ suppose we say that I with the instantaneous value of current, I क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंडक्टिव सर्किट में इन इंडक्टिव सर्किट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF क्या रहेगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, E इक्वल टू ई नॉट sin omega t plus phi, and in capacitive circuit EMF E equal to E naught sin omega t minus phi। ओके, अब देखो यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस में EMF दिया है E equal to E naught sin omega t, स्टार्टिंग इक्वेशन दिया है। तो अब करंट का इक्वेशन क्या रहेगा इन इंडक्टिव सर्किट,
इन इंडक्टिव सर्किट करंट क्या करेगा, लैग्स, जैसे अपन बोलते हैं ना इन सीरीज एलसीआर सर्किट, अगर इंडक्टिव सर्किट है तो ईएमएफ लीड और करंट लैग। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दिया है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या रहेगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो यहां देखो अगर करंट दिया है तो वी से डेट ईएमएफ लैग्स, सॉरी करंट दिया है तो ईएमएफ लीड्स द करंट बाय फेज एंगल फाइ, और अगर ईएमएफ दिया है तो करंट लैग्स द अप्लाइड ईएमएफ बाय फेज एंगल फाइ। एंड इन कैपेसिटिव सर्किट इंस्टेंटेनियस करंट रहेगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में क्या कहा था कि ईएमएफ लैग्स और करंट लीड, ईएमएफ लैग्स और करंट लीड। आगे ध्यान में, तो ये हो गया सीरीज एलसीआर सर्किट। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, द टोटल ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन E इक्वल टू अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस EL माइनस EC होल स्क्वायर, टोटल EMF applied, total opposition offered by series LCR circuit to the flow of alternating current is called as impedance. So impedance Z equal to under root R square plus XL minus XC whole square. Impedance Z equal to under root R square plus XL minus XC whole square. And next phase angle tan phi equal to XL minus XC upon R. Tan phi equal to XL minus XC upon R. Okay. Next है impedance triangle. Impedance triangle. अब देखो यहाँ potential drop across the resistor E equal to I into R. यहाँ पे EL minus EC, so we write XL minus XC and total EMF I into Z. So इसको क्या बोलेंगे, impedance triangle. So from figure cos phi को लिखेंगे power factor, cos phi is equal to adjacent side upon hypotenuse, cos phi equal to R by Z. So in case of series LCR circuit, cos phi equal to R by Z, Z equal to under root R square plus XL minus XC whole square. R by Z, Z equal to under root R square plus XL minus XC whole square. And again from figure tan phi is equal to XL minus XC upon R, opposite side upon adjacent side. Okay. तो ये हो गया अपना AC applied to a circuit containing resistor, inductor and capacitor in series. Okay. First numerical है a resistor of 12 ohm, capacitor of reactance 14 ohm and pure inductor of inductance 0.1 Henry are joined in series and placed across a 200 volt 50 Hz AC supply. Calculate current in the circuit and number 2 the phase angle between the voltage and current, or take pi equal to 3. तो देखो यार resistance R equal to 12 ohm, capacitor of reactance 14 ohm and inductor of inductance equal to 0.1 Henry. Inductor of inductance 0.1 Henry. Join in series and place across a 200 volt. And 50 Hz AC supply. अब देखो यार सबसे पहले निकालेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू 2 पाई FL. पाई की वैल्यू है 3, फ्रीक्वेंसी 50 एंड इंडक्टेंस 0.1. So 50 into 0.1 5 into 3 15 into 2 30 ohm. So इंडक्टिव रिएक्टेंस 30 ohm. सीरीज LCR है तो इम्पीडेंस Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर
तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R12 उसका स्क्वायर 144 प्लस XL 30 माइनस XC 14 होल स्क्वायर। सो अंडर रूट 144 प्लस 30 माइनस 14 16 का स्क्वायर 256, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 400 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 420। सो इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट इक्वल टू कितना है 20। अब क्या पूछा है, करंट इन द सर्किट। अब देखो IRMS इक्वल टू ERMS अपॉन इम्पीडेंस। सो RMS वोल्टेज है 200 और इम्पीडेंस है 20। सो RMS वैल्यू ऑफ करंट equal to 10 ampere. And now phase angle. So tan phi equal to XL minus XC upon R. Tan phi equal to XL minus XC upon R. So XL 30 minus XC 14 upon R. So phase angle tan phi is equal to 16 by 12, 4 by 3, that is 1.33. So phase angle phi equal to tan inverse 1.33 और इसकी वैल्यू होती है नियरली 53 डिग्री। ठीक है, बाय यूजिंग लॉग टेबल उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया RMS करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट एंड नंबर 2 द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। और यहाँ पे देखो इंडक्टिव सर्किट है, XL इज ग्रेटर देन XC, सो EMF लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ नियरली 53 डिग्री। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल है ए रजिस्टर ऑफ 50 ओम इंडक्टर ऑफ 20 अपॉन पाई हेनरी एंड ए कैपेसिटर ऑफ 5 upon pi microfarad connected in series to a voltage ERMS equal to 230 volt and frequency 50 hertz. Find the impedance of the circuit. एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। तो देखो यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL equal to 2 pi FL, so 2 pi frequency 50 and inductance 20 upon pi Henry. Pi की वैल्यू कैंसल, 50 into 200 into 220, 2000 ohm inductive reactance. Now capacitive reactance XC equal to 1 upon omega C, that is 1 upon 2 pi FC. So 2 pi frequency 50 and capacitive reactance, sorry, capacitance 5 upon pi microfarad. So XC equal to 100, 5 into 10 is to power minus 4, 10 is to power minus 6 और ये 100, 10 is to power minus 4, minus 4 ऊपर जाने के बाद plus 4. So capacitive reactance 2000. Now impedance of series LCR circuit. So R square, R equal to 50 plus XL 2000 minus XC 2000 whole square. So 0 square 0. So 50 square so impedance of series LCR circuit equal to 50 ohm. ठीक है, तो आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ है AC applied to a circuit containing series combination of inductor, capacitor and resistor.
ओके, और नेक्स्ट 2 लेक्चर में इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।